Okay, dear students, so in the previous lecture, we studied one numerical which was based on upstream and downstream. Now we'll continue the exercise. In exercise, the first problem is again related to upstream, downstream. Let us understand the condition over here. Ritu can row downstream 20 km in 2 hours. So the time to go 20 km downstream is 2 hours. And upstream 4 km in 2 hours. So time is same. Time is same for upstream and downstream. It's 2 hours. But when you are going downstream, Ritu can travel 20 km in 2 hours. But in the same time, if she wants to return upstream, she can come only 4 km. Okay. Based on this, we need to find the speed of rowing in still water and speed of the current. So just like the previous question also, here the two things that we need to find over here is the speed of the boat in still water, and the second thing that we need to find is the speed of the current or the speed of the stream or the speed with which the river is flowing. So we'll take them as x and y just like the previous sum. So okay, so speed of boat rowing in still water I have taken as x km per hour. Similarly, स्पीड ऑफ करंट यानी जिस स्पीड से रिवर फ्लो कर रही है उसकी स्पीड को हमने लिया है y किलोमीटर पर आवर. Now in this particular question also the boat is going downstream as well as upstream. तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल के सॉल्विंग बताया था कि जब आप डाउनस्ट्रीम जा रहे हो तो जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर के साथ ऐड होती है, लेकिन जब आप अपस्ट्रीम जाते हो तो वही स्पीड उसमें से माइनस होती है. तो हमारे नेक्स्ट अजम्पशन ये रहेंगे कि स्पीड ऑफ गोइंग लेट अस से फर्स्ट अपस्ट्रीम. तो जब अपस्ट्रीम जा रहे हैं तो हमारी स्पीड क्या रहेगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर. सिमिलरली स्पीड ऑफ गोइंग डाउनस्ट्रीम विल बी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. Using the same logic, okay? When Ritu is going upstream, her original speed will become x minus y. Why? Because the speed of stream will be opposite to the speed of the boat. And while she is rowing downstream, जब वो downstream जा रही है, तब speed of stream will help the speed of the boat उसमें add होगी. So our speed will become x plus y kilometer per hour. Now let us go to the conditions again. The condition is in the terms of time. तो जो हमारी पहली कंडीशन है उसमें रितु इज गोइंग डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स. ओके, सो टाइम टेकन टू गो और रो 20 किलोमीटर. पहले कहां पे जा रहे हैं? रितु कैन गो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर. सो टाइम टेकन टू गो 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम. तो टाइम का इक्वेशन है वो क्या रहता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस इज 20 किलोमीटर. एंड व्हाट इज द स्पीड? जब डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं तो हमारी स्पीड है x प्लस y. नाउ ये टाइम हमको दिया हुआ है. टाइम टेकन इज हाउ मच? 2 आवर्स. सो आई कैन राइट दैट 2 इज इक्वल टू 20 अपॉन x प्लस y. नाउ व्हेन आई इंटरचेंज दिस टू, okay, I will have x plus y is equal to 20 upon 2. Therefore, equation I will have is x plus y is equal to 10. This is my equation number 1. तो फिर से समझ लीजिए, टाइम टेकन टू गो 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम. टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस कितना किलोमीटर है? 20. जब हम डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं तो स्पीड कितनी है? x प्लस y. और टाइम टेकन हमको बता दिया गया कि दोनों केस में टाइम टेकन इज 2 आवर्स. सो दिस टाइम टेकन t यानी 2 is equal to 20 upon x plus y.
हम दोनों की जगह बदलेंगे तो यहाँ पे x प्लस वाई आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो क्या होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 20/2, 20/2 is 10, so the first equation that I get is x plus y is equal to 10. That is from my condition number 1. What is my condition number 2? She goes upstream 4 km in 2 hours. Okay, so now time taken to go 4 km upstream. Again, time is distance upon speed. यहाँ पे distance upstream में distance 4 km है, वहां पे distance 20 km था, so I put 20 over here, यहाँ पे 4 होगा, so 4. And when one is traveling upstream, the speed will be x minus y. So here I will have x minus y. Now here also time taken is same, that is 2. Okay, so now by interchanging these two, I will have x minus y is equal to 4/2. So therefore I will have x minus y. When you divide 4 with 2, you will get 2. So now second equation is x minus y is equal to 2. This is my equation number 2. Now after getting both the equations, the solving is very easy. So just as we discussed, we'll use the elimination method. We'll write these two equations side by side. So x plus y is equal to 10 and x minus y is equal to 2. No need to change the sign y because I already have plus y and minus y. So the part with y got eliminated. So now x plus x, that is 2x, is equal to 12. Therefore value of x is 6. That means the value or the speed of boat when it is in still water, the speed of rowing in still water will be 6 km/h. Now I can put this value in any of the equations. That is, I put x plus y is equal to 10, but x is 6. So 6 plus y is equal to 10. Therefore y is equal to 4. That means the speed of the current or the speed with which the river is flowing will be 4 km/h. So once again, as this is very important sum, हम एक बार उसका क्विक रिकैप ले लेते हैं. क्वेश्चन में हमको ऐसा दिया है कि रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 km in 2 hours, और जब वो अपस्ट्रीम आती है तो 2 hours में शी कैन कम 4 km. यूजिंग दिस टू कंडीशंस, इस डेटा को यूज करके हमको दो चीजें फाइंड करनी है. फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, जिसको हम x km/h ले लेंगे, एंड वी आल्सो नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट और द स्पीड ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर. I will take it as y km/h. तो हमने वो assumption ले लिया है. Now here also one time she is going upstream, one time she is going downstream. So when you go upstream and downstream, your speed changes. तो जो चेंज हो जाती है, तो जब हम अपस्ट्रीम जाते हैं तब जो स्ट्रीम की स्पीड है वो बोट की स्पीड के अगेंस्ट जाती है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट रहती है. So its speed will become x minus y km/h. In the same way, while she is rowing downstream, रितु जब डाउनस्ट्रीम जा रही है तब जो स्ट्रीम की जो स्पीड है वो बोट की स्पीड की सेम डायरेक्शन में वो एड अप होती है. तो यहाँ पे स्पीड हो जाएगी x plus y km/h. यहाँ पे हमको दो बार टाइम दिया है, 2 hours for going 20 km downstream. So time taken to go 20 km downstream, time is distance upon speed. ये time 2 है, so 2 is equal to 20 upon x plus y. So by interchanging, we will get the first equation, that is x plus y is equal to 20 divided by 2. And when you divide 20 with 2, you will get equation x plus y is equal to 10. That will be my equation number 1. फिर हम जाएंगे दूसरी कंडीशन पे. क्या है हमारी दूसरी कंडीशन? She goes upstream 4 km in 2 hours. So again, equation will be framed in the terms of time. So time taken to go 4 km upstream. यहाँ पे भी time 2 hours ही है. So 2 is equal to distance कितना है 4 km. अपस्ट्रीम जाते वक्त स्पीड क्या है x minus y. So t is equal to 4 upon x minus y. इन दोनों को इंटरचेंज किया तो x minus y is equal to 4 divided by 2. 4 divided by 2 comes 2. तो हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया x minus y is equal to 2. अब हम इक्वेशन 1 और 2 को एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे. So when you solve equation 1 and 2 using elimination method, the y part got eliminated. X plus x 2x, 10 plus 2 is 12. That gives me value of x is 6. Now what was x? X was the speed of boat in still water. So that will be 6 km/h. और एंड में मैंने ये जो x is equal to 6 है वो वैल्यू डाल दी इक्वेशन नंबर 1 में. इक्वेशन नंबर 1 है हमारा x plus y is equal to 10. So when I put 6 instead of x over here, I will get the value of y as 4, and y was the speed of current. So in this particular case, the speed of the current or the speed of the water is 4 km/h.
Okay, dear students, one more sum on the word problem section. The question is like this: 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. So there is some amount of embroidery work. If in a team there are 2 women and 5 men, and this team is working simultaneously at the same time, then the work will be finished in 4 days. That is my condition number 1. Now condition number 2: why 3 women and 6 men? Okay, if the members in the team are changed, and if there are 3 women and 6 men, then the work which was completed in 4 days now will complete in 3 days. So using these 2 conditions, I need to find 2 things. What are those 2 things? Find the time taken by one woman alone to finish the work, and also that taken by one man alone. यानी इस सब में हमको ये फाइंड करना है कि अगर वन वुमन अकेले काम करती है, नॉट इन अ टीम, इफ अ मैन एंड वुमन आर वर्किंग अलोन, देन इन हाउ मेनी डेज दे विल बी एबल टू कंप्लीट द सेम वर्क. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द सेम लॉजिक, जो भी हमको फाइंड करना है, विल टेक द वैल्यू ऑफ दिस दैट 2 थिंग्स एज x एंड y. तो इस समय में हमको क्या फाइंड करना है? आई हैव टू फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमन अलोन टू कंप्लीट द वर्क, and I also have to find the time taken by one man alone to complete the work. So I will take those values as x and y. So suppose हम ले लेते हैं कि टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन टू कंप्लीट द वर्क एज लेट अस से x days. ठीक है, इन द सेम वे आई विल टेक टाइम टेकन बाय वन वुमन अलोन टू कंप्लीट the work as y days. यानी सिर्फ एक मैन अलोन काम कर रहा है, तो उसको काम खत्म करने के लिए कितने डेज चाहिए? x डेज. और अगर एक वुमन अलोन काम कर रही है तो उसको कितने डेज चाहिए? y डेज. नाउ हियर द वर्क इज डन इन सर्टेन डेज. तो हमको ये फाइंड करना है कि 1 डे में कितना काम हो रहा है. तो एकदम बहुत ही सिंपल है. आप एग्जांपल ले लीजिए. सपोज इफ आई गिव यू सम वर्क and you are able to finish that work in 3 days. मैंने आपको कोई काम दिया है पर आप उसको 3 दिन में खत्म कर रहे हो, तो एक दिन में आपने कितना काम खत्म किया? तो एक दिन में आपका जो काम खत्म हुआ दैट इज 1/3. 1/3 1/3 1/3, उसको आप ऐड अप करोगे तो 3/3, यानी आपका 1 वर्क खत्म हो गया. समझ में आ रहा है? तो अगर आप कोई काम 3 दिन में कर रहे हो तो इन 1 डे यू आर सॉल्विंग 1/3 ऑफ द वर्क. सिमिलरली if you are completing some work in 5 days, suppose आप 5 दिन में खत्म कर रहे हो, तो एक दिन में आपका वर्क कितना होगा? 1/5. सिमिलरली अगर आप 8 दिन में खत्म कर रहे हो तो एक दिन का वर्क होगा 1/8, और 10 डेज में खत्म करते हो तो एक दिन का वर्क होगा 1/10. तो हम वही लॉजिक यहाँ पे यूज करेंगे. तो आप समझिए कि वन मैन अलोन पार्ट ऑफ वर्क डन बाय वन मैन इन 1 डे, वो कितना होगा? 1/x. क्यों? क्योंकि वो कितने दिन में खत्म कर रहा है? x डेज में. तो एक दिन में कितना हुआ? 1/x. सेम लॉजिक, अगर आप 3 दिन में काम खत्म कर रहे हो तो एक दिन में कितना कर रहे हो? 1/3. अब 5 दिन में काम खत्म कर रहे हो तो एक दिन में कितना कर रहे हो? 1/5. तो आप x डेज में काम खत्म कर रहे हो तो एक दिन में आपने कितना काम किया? 1/x. इन द सेम वे जो वुमन है वो कितने डेज में काम खत्म कर रही है? y डेज. तो उसका मतलब वन वुमन एक दिन में कितना काम खत्म करेगी? 1/1. सो सिमिलरली पार्ट ऑफ वर्क डन बाय वन वुमन अगेन इन 1 डे विल बी इक्वल टू 1/y. तो फिर से समझ लीजिए, हियर आई हैव टेकन 2 चीज हमको फाइंड करनी है. टाइम टेकन बाय वन वुमन अलोन एंड वन मैन अलोन टू कंप्लीट द वर्क. तो जो वन मैन अलोन काम खत्म करने के लिए जो टाइम लेता है उसको मैंने रखा है यहाँ पे x डेज, और वन वुमन अलोन को जो काम खत्म करना है उसके टाइम को मैंने रखा है y डेज. तो
वन मैन अलोन x डेज में कंप्लीट कर रहा है, वन वुमन अलोन y डेज में कर रहा है। सो इन शॉर्ट आई नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। फिर मैंने लॉजिक लिया कि एक मैन एक दिन में कितना वर्क करता है, तो एक मैन एक दिन में 1/x करता है, एक वुमन एक दिन में 1/y करती है। अब जाएंगे हम कंडीशन पे, लेट्स गो टू द कंडीशन। यहां पे कितनी वुमन है, 2 वुमन है और 5 मैन है। एक मैन का एक दिन का वर्क 1/x है, तो 5 मैन है यहाँ पे, तो 5 मैन का 5 दिन का वर्क होगा 5/x, दैट इज 5 into 1/x। 1 मैन एक दिन में कितना वर्क करता है, 1x, 1/x। तो 5 आदमी है, तो 5 दिन में कितना वर्क करेंगे, 5 into 1/x, दैट इज 5/x। अब 5 मैन के साथ 2 वुमन भी वर्क करती है, तो यहाँ पे हम डालेंगे प्लस, ठीक है। 1 वुमन का 1 डे का वर्क क्या है, 1/y। ये लेकिन यहाँ पे कितनी वुमन काम कर रही है, 2। तो जो 2 वुमन है उनका 1 डे का वर्क होगा 2 into 1/y, दैट इज 2/y। तो ये 5 मैन और 2 वुमेन का वर्क कंबाइन हो गया। ओके, ये एक दिन का वर्क हुआ। दोनों इकट्ठा होकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, दे टेक 4 डेज, ठीक है। तो ये जो 1 डे का काम है उसको हमको मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों जब साथ काम कर रहे हैं तो उनको 4 डेज लगते हैं। तो ये जो ब्रैकेट है ये 5 मेन और 2 वीमेन का 1 डे का वर्क है, 1 डे का वर्क है। इसको मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, 4 करना है, बिकॉज हियर दे आर टेकिंग टोटल 4 डेज। तो ये पूरा 4 डे वर्क करके वर्क कितना खत्म करते हैं, वर्क तो खत्म करते हैं 1। तो यहां पे राइट हैंड साइड पे आएगा 1। सो वंस अगेन 5 मेन प्लस 2 वुमन, ये उनका 1 डे का वर्क, टोटल 4 डेज में 1 वर्क खत्म करते हैं, तो इनटू 4, और जो वर्क खत्म होता है वो 1 है, इसलिए यहां पे आएगा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ऐसा इक्वेशन मिलेगा 20/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 1। फिर हम चले जाएंगे सपोजिशन पे, क्योंकि x और y यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया। जब डिनोमिनेटर में आ जाता है तब हम 1/x और 1/y को a और b लेके उसको सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं। सो हियर आई विल टेक 1/x is equal to a and I will take 1/y is equal to b. So after taking that, my equation will look like this: 20a plus 8b is equal to 1. So this is my equation number 1 that I derived using condition number 1. What was condition number 1? 2 women, 5 men together finish embroidery work in 4 days. Now for the second equation, I will use कंडीशन नंबर 2। तो देखते हैं क्या है कंडीशन नंबर 2। यहां पे वी हैव 3 women and 6 men, ठीक है। तो सेम लॉजिक से कंडीशन नंबर 2 से, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2। नाउ यहां पे हमारे पास 6 men है, ठीक है। तो 1 मैन का 1 डे का वर्क था 1/x, तो 6 मैन का वर्क क्या हो जाएगा 6/x, प्लस उनके साथ 3 women भी काम कर रही है। एक वीमेन का 1 डे का वर्क है 1/y, तो 3 women का हो जाएगा 3 into 1/y, so that is 3/y. Now this is the work done by 6 men and 3 women in 1 day. लेकिन ये जो कंडीशन है वो कितने दिन तक चालू रहती है, how many days they complete the one work, that is 3 days. So this bracket will be multiplied by 3, और जो वर्क है वो कितना खत्म होता है 1, तो राइट हैंड साइड पे तो आएगा इज इक्वल टू 1, उसमें कोई चेंज है नहीं। ठीक है, तो हम इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो आएगा 18/x प्लस 3 3 9/y इज इक्वल टू 1। अभी हमने असम्पशन वाला पार्ट लिया हुआ है, 1/x इज इक्वल टू a है और 1/y इज इक्वल टू b है। तो ये इक्वेशन हो जाएगा 18a प्लस 9b is equal to 1. This is my equation number 2. So this is my equation number 1. 20a plus 8b is equal to 1. This is my equation number 2. That is 18a plus 9b is equal to 1. Now using these two equations, we will use the elimination method, get the values of a and b, and after getting the values of a and b, then we will find the values of x and y. So as the space was little less, I have erased the board and I have written the two equations that we got from condition 1 and 2. From condition 1, I got equation 20a plus 8b is equal to 1, and from condition 2, I got 18a plus 9b is equal to 1.
Now suppose I want to eliminate, let us say B part, हमको B part एलिमिनेट करना है, तो जो 8 वाला है उसको मल्टीप्लाई बाय 9 कर देंगे और 9 वाला है उसको मल्टीप्लाई बाय 8 कर देंगे, तो एलसीएम जो 72 आएगा वो एलिमिनेट हो जाएगा. सो नाउ 20a into 9, 29 से I will get 180a plus 9 8s I will get 72b is equal to 9 1s होगा 9. Similarly 18 into 8 करेंगे तो आएगा 144a plus 9 8s 72b is equal to 8 1s होगा 8. So now in this equation I got same coefficient of b, that is 72. Okay, so by changing the sign I will get minus, minus and minus. So as you can see the part with 72b got eliminated. अभी हमारे पास 180a minus 144a, so that will give me 36a. ठीक है, b वाला पार्ट तो एलिमिनेट हो गया है, is equal to 9 minus 8 is 1. That means the value of a is 1 by 36. So after getting the value of a is 1 by 36, I can put this value of a in either equation 1 or 2 and get the value of a. यहाँ पे हमको थोड़ा दिमाग लगाना है. a की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में भी डाल सकता हूँ, यहाँ पे भी डाल सकता हूँ, लेकिन I will prefer this equation. Why? Because 18 और 36 कट होते हैं. ठीक है, इसमें भी आंसर आएगा, लेकिन जो फ्रैक्शन है वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा, यहाँ पे डायरेक्ट कट होगा, तो आंसर तो दोनों में आएगा. बट टू सेव द टाइम, ठीक है, I will put this value of a which is 1 by 36 in the second equation. अब हमारा सेकंड इक्वेशन था 18a plus 9b is equal to 1 and the value of a is 1 by 36. So 18 into 1 by 36 plus 9b is equal to 1. Now 18 to 36 होगा, so यहाँ पे बचेगा 1 by 2 plus 9b is equal to 1. So therefore 9b is equal to 1 में से हाफ जाएगा तो आएगा 1 by 2. 9 नीचे चला जाएगा तो value of p will come 1 upon 18. So now we have value of a, we have value of b, but we want to find the value of x and y. So now we will go to the assumption part. तो यहाँ पे हमने क्या लिया था कि भाई part of work done by one man alone, ठीक है, उसकी जो वैल्यू आएगी वो होगा x, और part of work done by one woman alone. पार्ट की जगह हम यहाँ पे टाइम देख सकते हैं, टाइम टेकन, ठीक है, टाइम टेकन by one man alone and one woman alone to complete the work, उसकी वैल्यू x और y. तो हमको फाइंड करना है x और y. तो याद करो हमने 1 upon x इज इक्वल टू लिया था a और 1 upon y उसको लिया था हमने b, ठीक है. तो 1 upon x इज इक्वल टू a है, सो देयरफॉर 1 upon x इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1 by 36. सो हियर आई विल राइट 1 by 36. Therefore x is equal to 36. Similarly 1 upon y is b. So 1 upon y is equal to b की वैल्यू हमारी है 1 by 18. So here I will take 1 by 18. क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो y is equal to 18. उसका मतलब कि वर्क डन बाय जो टाइम है, अगर एक मैन अलोन काम करता है तो वो कितने डेज में कंप्लीट करेगा, वो कंप्लीट करेगा 36 डेज में. एंड इफ वन वुमन अलोन इज डूइंग द वर्क, she will complete the work in how many days? She will complete the work in 18 days.